Good morning, my dear students. Yesterday we were dealing with this topic, the types of color blindness, and I have just told you that it is not going to come in your exam, but you can just know it is of different type. The name is given as per the this appearance or disappearance of particular color. But here, color blindness, that means that person will not be able to just see particular color. Monochromatism, I think you can just say that they cannot see any of the color and they will shade everything will be appear in the form of shades of gray. Dichromatism, in which partial color blindness, that means only two colors are perceptible, though two colors can be perceived. In this perceptible, these are like red, green and blue, yellow. Then daltonism, the condition of color blind person who unable to identify red and green color. It is the condition in which a person cannot identify red and green color. Then protanopia, इसमें क्या होगा? What will happen? There is a defective perception. Person will not be able to perceive red color and confusion of red with the green. अगर red और green को एक साथ use कर लिया तो person will get confused whether it is red or green is there or not, like it is there in this first image you can just see here. Then bluish green, they will also find it hard to just differentiate between the bluish and green, which is mentioned here. Then neutropenia, a form of color blindness characterized by insensitivity to green. The person will not be able to just see or perceive green color in this case. Then in the next case we can just see there are different colors. In one case, when the person, in the first case you can just see the view of normal person, and in the other case you can just see perception or the view of the person who would be having color blindness. You can just see, and if you know any of the person who is having color blindness, just do inform me about that. Then here one table is mentioned in which it is just for checking the color blindness of a person. Like here I am just rotating it. Here 25 is written, जिसको नहीं दिख रहा है that person might have color blindness. Then in here 6 is written, नहीं दिख रहा है, color blindness chances could be there. Then here 45 is written. I don't know who are able to see it or not, but I am just reading out what I am just seeing that. And if in case you are just seeing that ma'am आप गलत पढ़ रहे हो, तो it might be possible I might, but I am not that, so you can ask me also. But it is here 8, then it is 56, then next one is here, it's a 29. These all our tests are so much amazing. That's why science is very interesting field. Next here 12 is written. Next here 8 is written. Other one is here 29 is written. I'm also finding it a bit difficult 29 को कि क्या लिखा था, but it's 29 written. Here 5, then 3 it is, and the last one is 15 it is written. So those who are able to see these numbers, they are not having color blindness problem, but those who are having difficulty in perceiving it, they might have. And if someone is having, then do inform me, I'll check that. Then the next disorder which we are studying under the Mendelian disorder, that is a sickle cell anemia. Questions are asked related to this chapter, sickle cell anemia, so you have to just keep command over it. Now what happens generally, that RBCs, या red blood cells, have disc shaped biconcave structure, like this biconcave structure, disc shape. But what happen in the case of sickle cell anemia, they become sickle like, जैसे हंसिया होता है वैसे हो जाता है. Like you can see sickle cells and the normal RBCs are there. It is also Mendelian disorder. We will see how it occurs, और इसका जो कोड रहता है जिसमें changes आते हैं, that code is asked in the exam. अभी we will explore that also. But here one advantage which was mentioned at somewhere, that what is the advantage of sickle cell anemia? So it was just observed that in Africans this sickle cell condition is prevalent. Now what happens, because the shape of RBC is not normal, that's why they are less prone to malaria. Why malaria? Because you all know that in life cycle of that malaria that protozoa, what is that plasmodium जो आपने पढ़ा था, in that it lives inside the RBC also, but here
because it is sickle cell, it cannot survive. So that is the advantage for those who have sickle cell anemia, but it doesn't mean that you are going to have sickle cell anemia ताकि मलेरिया ना हो. Because what happens because of this disease? The thing which happens because of this disease is that deficiency of the oxygen can occur in the body, because whatsoever the carrying capacity of normal RBC is there, that will get affected, and that's why it is just mentioned here as sickle cell anemia, a case of anemia. Now this is very much important, this speech. HBB सीक्वेंस इन नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन ए, जो नॉर्मल एडल्ट है उसका हेमोग्लोबिन ए जो है उसका सीक्वेंस क्या होगा, हेमोग्लोबिन जो है, इट इज़ रिटन HBB हेमोग्लोबिन सीक्वेंस जो है. अब देखोगे यहाँ पे आप CTG मतलब एक सीक्वेंस का ले लिया गया है पार्ट, CTG ACT CCT GAG GAG देन AAG एंड TCT. अब इसको याद करने के लिए आप केवल इतना भी सीक्वेंस याद कर सकते हो, बट पूरा याद करोगे नो प्रॉब्लम इज देयर. बट अब यहाँ पे आप देखोगे, अब पूछोगे ये क्या है, CTGA, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू A is a nitrogenous base which is called as a adenine. C is here cytosine, 11th में पढ़ा था, रिकॉल करिए. एंड देन T is there thymine एंड G is there guanine. ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे C आपको पता है. अब इसको आप किस फॉर्म में देखोगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ये जो है इसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं. मतलब जो कोडॉन्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस है वो 3 के पेयर में रह करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो अब यहाँ पे जैसे CTG का अगर सीक्वेंस आएगा तो एक वेट, ये CTG का अगर सीक्वेंस आएगा तो ये कौन सा अमीनो एसिड यू नो दैट दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड जुड़ के लॉन्ग चेन बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटीन. तो ये किस अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है, ल्यूसीन अमीनो एसिड. फिर ACT किसको कर रहा है, आपका थ्रोम्बिन. फिर CCT किसको कर रहा है, प्रोलैक्टिन को. GAG किसको कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को. GAG भी किसको कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को. AAG किसको कर रहा है, लाइसिन को. और TCT किसको सिंथेसाइज कर रहा है, किस अमीनो एसिड को, सेरिन को. बट अब HBB सीक्वेंस इन म्यूटेंट एडल्ट, जिसको सिकल सेल अनीमिया हो गया है, उसका हेमोग्लोबिन सीक्वेंस, यानी जो RBC आप पढ़ रहे थे उसमें पता है ना मेजर कंपोनेंट हेमोग्लोबिन होता है, उसमें ये जो गैग था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GTG में. मतलब आप इसको गैग याद कर सकते हो, GAG, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू GTG. और जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था वहाँ पे अब कौन सा अमीनो एसिड आ गया, वैलिन, VAL इज रिटन देयर. सो वैलिन हैज़ जस्ट फॉर्म देयर. अब ये जो सिंपल सा चेंज हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ RBC फ्रॉम नॉर्मल बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड RBC टू सिकल शेप्ड RBC. दिस थिंग इज हैपनिंग. अब बच्चों दिस आर द chromosomal disorder, and if you must have remember my last lecture, so I have discussed about Down syndrome, and I have as we have discussed about this chromosomal disorder like Down syndrome, we have studied Turner syndrome and Klinefelter syndrome in my previous video lecture. So these also you also have to revise. These are also very much important. Now we are going to just see from our NCERT book what are the other things which are still left. I again want to discuss about this page with you. Why? Because one thing which you have to focus always when you are reading it, whether the disease is sex linked. Sex linked means कि it could be either due to X chromosome or Y chromosome. Then or the other case of the disease, it is autosomal. अब ऑटोजोमल क्या होता है आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर कितने 23 पेयर्स क्रोमोजोम है, यानी कि टोटल 46. इसमें से 23 जो पेयर हैं उसमें से 22 पेयर क्या हैं आपके ऑटोजोम है. ऑटोजोम मतलब जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फीचर्स, लाइक यू कैन से ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे. बट जो 23rd क्रोमोजोम का पेयर है, दैट मीन्स XX या XY, ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेंडर क्या होगा. जेंडर इन द सेंस आई कैन जस्ट सी दैट
वेदर द चाइल्ड विल बी मेल और द चाइल्ड विल बी फीमेल। ये 23rd जो आपका क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है। तो जो आपका जेंडर या सेक्स डिसाइड करेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और बाकियों को ऑटोसोम। तो जो डिजीज़ इन ऑटोसोम जो आपने पढ़ा था इन इस वाले सीक्वेंस में अगर चेंज होने पे आएगी, ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उसके जीन के सीक्वेंस में अगर चेंज होने से जो डिजीज़ होगी उसको ऑटोसोमल डिजीज़ बोलेंगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़, मतलब सेक्स लिंक्ड डिजीज़ बोलेंगे। अब जो आपको नेक्स्ट की कंडीशन याद रखनी है वो है सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ एंड सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, और मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, रेसेसिव डिजीज़। अगर वो क्या कहते हैं डिजीज़ हो रही है जिसमें एक डोमिनेंट है और एक स्मॉल है, और उसमें डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, डोमिनेंट जीन की वजह से हो रही है, तो उस केस में उसको हम क्या बोल देंगे, सपोज इफ इट इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़, और अगर ऑटोसोमल है तो इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। या नाउ बट इफ़ इट इज़ अकरिंग इन द रेसेसिव कंडीशन, मतलब अगर डोमिनेंट है तब तो डिजीज़ नहीं होगी, जैसे आपने हीमोफीलिया का केस देखा था, बट अगर दोनों रेसेसिव वाला केस है तो उस केस में क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जा रही है तो इसको रेसेसिव, जैसे अगर सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू हो रही है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ बोल देंगे, और अगर ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के थ्रू हो रही है तो इट वुड बी कॉल्ड एज ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में कि हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, तो इट इज़ सेक्स लिंक्ड, देन इट इज़ डोमिनेंट डिजीज़ या रेसेसिव, तो यहाँ पे दिया है रेसेसिव। बाकी फीचर्स आप इससे पढ़ लोगे। किसकी हिस्ट्री में पाया गया था, क्वीन विक्टोरिया, विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। देन नेक्स्ट डिजीज विच इज मेंशन हियर दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। आप देखो यहाँ पे लिखा है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़, यहाँ पे सेक्स लिंक्ड रेसेसिव को बताया गया था, यहाँ पे ऑटोसोम से रिलेटेड है। तो इसमें जेंडर अगर ऑटोसोमल डिजीज़ है तो ये मेल को भी हो सकती है फीमेल को भी, और अगर सेक्स लिंक्ड है तो डिपेंड्स अपॉन कि किस क्रोमोसोम में हुई है। अगर एक्स है तो मेल वुड बी मोर अफेक्टेड इन दिस केस, और अगर वाई में है तो इफ इट इज़ वाई देन ऑल्सो ओनली मेल इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। बट in the case of sickle cell anemia, it is mentioned here clearly it is an autosome linked recessive trait. Features I have explained you. One more thing which you have to see, you can see how clearly the diagram is mentioned here, which we have seen in our previous slide also. इस चीज़ को आप याद कर लेना, ये बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट और सही डिपिक्शन है, एंड इफ़ यू विल लर्न इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट माइट कम इन योर एग्जाम ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था, नॉर्मल हेमोग्लोबिन ए जीन, जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन है उसके लिए जो जीन है वो ये सीक्वेंस है। यहाँ पे इतना सीक्वेंस पे आपको याद रखना है, क्या सीक्वेंस है, गैग, GAG, CTC, इसके बीच में कुछ और सीक्वेंस आएंगे, फिर GAG आएगा। अब क्या हो रहा है, आपको पता है जीन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेगमेंट ऑफ DNA से क्या बनता है, RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। अब ये जो RNA से प्रोटीन बनेगा, यानी उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर थे, जैसे हमने CTC ले लिया, ये कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाएंगे, और वो अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते जाएंगे, एंड दे विल मेक वन प्रोटीन, वो एक लॉन्ग चेन प्रोटीन की बना लेंगे। बट ये तो आपका कंडीशन आ गई नॉर्मल, ठीक है, वी कैन से कि नॉर्मल कंडीशन में ये हो रहा है। बट अगर ये पर्सन में सिकल सेल एनीमिया है तो यहाँ पे जो GAG यानी ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन का जो पेयर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, GUG यानी ग्वानिन, यूरासिल एंड ग्वानिन, एडेनिन की जगह पे क्या आ जा रहा है, यूरासिल। अब जब ये सीक्वेंस था तब तो कौन सा अमीनो एसिड बन रहा था, ग्लूटामिक एसिड। बट अगर गग आ गया, गैग की जगह पे, सब आप गैग और गग से याद कर सकते हो, गैग की जगह क्या आ गया, गग आ गया। इन दैट केस डिस्पाइट ऑफ ग्लूटामिक एसिड व्हाट अमीनो एसिड इज गोइंग टू गेट फॉर्म, वेलिन। और देखो प्रोटीन का क्रूशियल रोल आपकी बॉडी में क्या है, इट्स अ क्रूशियल रोल ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी दैट इट हैज़ रिजल्टेड इन द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अब ये चीज़ तो क्योंकि जीन से लिंक्ड है तो इसको आप ये नहीं बोलेंगे कि डाइट के थ्रू सही कर सकते हो, बट वन थिंग इज़ देयर, इफ़ यू फॉलोइंग प्रॉपर डाइट, तो हाउ जस्ट यू कैन सी हाउ प्रोटीन्स आर वर्किंग, तो आपके अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है इट विल सिंथेसाइज इन प्रॉपर वे। बट यहाँ पे ये जीन से आपका रिलेटेड है, इसका कुछ भी आपका रिलेशनशिप फूड और डाइट से नहीं है, तो दिस कंडीशन इज़ देयर। अब बच्चे वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मेक करेक्शन इन द प्रीवियस, if you go to the back, by mistake I have just spoken about it, thrombin,
but it is threonine. It is amino acid, it is that amino acid. So I just want to make correction और आप भी इसको सही याद कर लेना. Sorry for my mistake. अब because we speak a lot, so sometimes we speak the things which are more in our memory as compared to those which are not. But next is here, that is the phenylketonuria. अब इसको आप याद रखोगे ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट. देखो अब आपको बस इतना याद रखना है कि एनसीईआरटी में जितने भी ट्रेट्स दिए हैं वो सारे कैसे रेसेसिव. अभी तक हमने एक भी डोमिनेंट नहीं पढ़ा इस बुक में. इसके अलावा जो है वो तो पढ़ना है आपको, श्योर पढ़ना है, नीट क्वालिफाई करना है. सो फेनिलकेटोनुरिया. अब ये इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म सिंस बर्थ से होगा क्योंकि हेरिटेबल है, जीन का है. अब इसमें क्या होगा, ऑटोजोमल रेसेसिव. इसमें अगर रेसेसिव जीन्स होंगे तभी डिजीज़ होगी, अदरवाइज नहीं. इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है. एंजाइम प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है टायरोसिन में, और ये टायरोसिन आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए यूज़ होता है. बट जिन बच्चों को फेनिलकेटोनुरिया रहेगा, जिन पर्सन को, उनके अंदर फेनिल एलिनाइन जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में. और जब कन्वर्ट नहीं होगा इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग and it will get converted in the form of phenyl pyruvic acid which is not good for our body and its other derivatives. मतलब इसके दूसरे केमिकल्स के फॉर्म में. ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं है. इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इट ऑल्सो गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक इट इज़ रिटन हियर. एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो ब्रेन में इसका कोई यूज़ नहीं है. दैट मीन्स यू कैन जस्ट से कि सर्टेन टॉक्सिक थिंग इज गोइंग टू जस्ट एक्यूमुलेटेड इन द ब्रेन. तो मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा फेनिलकेटोनुरिया में. अब क्योंकि एक्सेस है, बॉडी वुड ट्राई, देखो आपकी बॉडी कितनी इंटेलिजेंट होती है, वो ट्राई टू एलिमिनेट इट थ्रू यूरिन, कि यूरिन से ही कुछ पोर्शन को बाहर भेजा जाए. बट देयर आर ऑल्सो एक्सीटेड, इसलिए ये पॉइंट आ जाएगा आपको कि दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स प्योर एब्जॉर्प्शन इन किडनी. किडनी में इसका बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट हो जाएंगे. सो दिस पॉइंट्स आर देयर विच यू हैव. But this thing also I want to share with you all. This is a supplementary material which is given at the back page of NCERT. But in previous edition we find it as a supplementary material. But in new edition, what I have noted down that it is also mentioned in between the chapters which are related to it. Like here, related to first chapter, the thing which is important, that is ancestation and sporulation. So what happened in ancestation? Suppose the condition is not favorable for amoeba or such kind of microorganism. So what will they do? They will produce a protective layer around them and inside which they will survive. So that is called as a ancestation. इसको हम ancestation बोलते हैं. Then the next condition, when favorable condition returns, the ancestor amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and these spores are liberated in the surrounding medium. This is called sporulation. यानी वो अपने ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लिया, इसके अंदर अमीबा है. दिस इज कॉल्ड एंसेस्टेशन. सपोज ये लिक्विड में रह रहा था, वो वहाँ का पॉन्ड का वाटर सूख गया उस केस में. बट फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन हो गई तो ये इसी के अंदर, अब सोचो इसको पता चल गया है, जो भी ये अपने आप को स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लेगा. इसको आप माइन्यूट अमीबा भी बोल सकते हो या सीडोपोडियोस्पोर्स बोल सकते हो. इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर कुछ टाइम बाद ये बर्स्ट कर जाएगी वॉल और सीडोपोडियोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे मीडियम में, विच विल लेटर ऑन अगेन कन्वर्ट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. सो दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन. इन स्पोर्स या सीडोपोडियोस्पोर्स के रिलीज होने को हम बोल देंगे स्पोरुलेशन. जो रिलीज हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन. देखो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्पोरुलेशन. फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 7 से रिलेटेड एक चीज़ दिया हुआ है आपका. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन. तो आई थिंक यू ऑल हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन एंड क्लास 10th ऑल्सो. सो इट्स योर होमवर्क. आपको खुद से पढ़ना है क्या है फ्रैगमेंटेशन. नहीं आएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. बट अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हेयर फ्रॉम योर द चैप्टर 5th जो अभी हम पढ़ रहे हैं. इसमें क्या दिया हुआ है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. Mendel's studies, इसको I am just reading also for you. Mendel's studies mainly describe those traits which have distinct alternate form. मतलब alternate form थे फ्लावर के, like purple, white, 2 कैरेक्टर हमने लिए थे. But what happens here? In humans we do not just have tall or short people as 2 distinct humans that
वी ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव्स बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स, मतलब हाइट का अलग अलग रेंज हो सकता है, ये नहीं केवल एक टॉल हो गया एक शॉर्ट हो गया, मॉडरेट भी आप देख रहे हो, डिफरेंट फीचर्स आर देयर। इस तरह की ट्रेट्स जिसको 3 या उससे ज़्यादा जीन कंट्रोल करती हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। नेक्स्ट, इसके अलावा मल्टीपल जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो क्लासिक एग्जाम्पल। अब इसमें क्या आ जाएगा आपको, देखो ए बी सी दिया हुआ है, ये सी है, ये हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। अब ये डोमिनेंट होगा कौन सा कलर, डार्केस्ट स्किन, यानी जिनकी स्किन डार्क है यानी मेलनिन पिगमेंट ज़्यादा है, उनके अंदर सारे कैसे हो जाएंगे, डोमिनेंट। एंड इट इज़ मल्टीपल एलील एंड पॉलीजेनिक, दोनों कंडीशन है। फिर आप देखोगे कुछ लोगों का कलर क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, उसमें ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एंड दोज हु आर एक्सट्रीमली फेयर, उनका रेसिव हो जाएगा। I have written here also. So this condition will prevail. So this is the skin color in humans is also example of polygenic inheritance. Then chapter 5 से ही एक और आपका टॉपिक आ जाएगा which is here, that is the pleiotropy. देखो unit 7 chapter 5 the principle of inheritance is chapter 5 only. Let us see further what things are mentioned here. You can just see how many things are mentioned here up till here. What are the conditions which I mentioned here? Like pleiotropy, sex determination in honeybee, and color blindness, thalassemia also. All these things come in exam. It's very much important. I'm just telling you, it's very much important. Now let us see what are the things in pleiotropy. What is going to happen? We have so far seen that effect of gene on a single phenotype. एक phenotype के trait को वो क्या कर रहा है, govern कर रहा है. But the underlying mechanism of pleiotropy is most cases is the effect of a gene on metabolic pathway. ये किसको अफेक्ट करते हैं, metabolic pathway को जनरली ये अफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल इसका क्या है आपका, फिनिलकीटोनूरिया, जो भी आपने पढ़ा था पीछे, विच अकर्स इन ह्यूमंस में हो रहा है एक जीन की म्यूटेशन से. कितनी जीन में म्यूटेशन हो रहा है, एक जीन की म्यूटेशन के थ्रू हो रहा है, बट इसकी वजह से कितने सारे फिनोटाइप अफेक्ट हो रहे हैं. एक जीन से हो रहा है तो एक ही फिनोटाइप अफेक्टेड होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, हेयर्स कम हो जाएंगे, स्किन पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगा. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, सिंगल जीन इज एग्जिबिटिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. इस सिंगल जीन का फंक्शन था मेंटल रिटार्डेशन ना हो, हेयर की ग्रोथ प्रॉपर हो, स्किन पिगमेंटेशन नॉर्मल हो, बट क्योंकि ये जीन एब्सेंट है तो मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, रिडक्शन इन हेयर हो रहा है और स्किन पिगमेंटेशन में भी चेंजेस हो रहे हैं. द नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंटरेस्टिंग अगेन. लाइक हेयर वी हैव इन दैट हनीबी 3 कैटेगरीज आर देयर, क्वीन, वर्कर बी एंड मेल. ठीक है, दिस queen and worker bee both are, you can just say, are the product of that fertilization only. तो both are diploid, but queen is reproductively active, it can give birth to the young ones, but worker bee sterile होते हैं, ये birth नहीं दे सकते हैं. जो मेल है they would be producing male gamete. अब क्या होता है इस केस में, इन केस ऑफ हनी बी फीमेल्स आर डिप्लॉयड बट मेल इज़ हैप्लॉयड, यानी कि जो ओवम है अगर इसको फर्टिलाइज कर दिया गया तो ये फीमेल बन जाएगी. अभी फीमेल में क्वीन बन रही है कि वर्कर बी, दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी विच आई विल टेल यू इन सम टाइम अदर, आई विल जस्ट टेल यू. बट हियर व्हाट हैपन्स, मेल इज़ हैप्लॉयड बिकॉज its development occurs directly from that ovum, no fertilization has occurred here, that's why it has resulted in the formation of male. So female is diploid, male is haploid. And what is the number of chromosome in them? It's 32, here it is 16. Now what happens in female, meiosis होगा, meiosis से कितना, हर गैमेट में 16 क्रोमोसोम जाएंगे, जबकि मेल में क्या होगा, माइटोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होगा और उसमें भी 16 ही जाएगा. मियोसिस में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है. अब अगर इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ तो व्हाट विल फॉर्म इट हियर, दैट मेल. बट अगर ये फर्टिलाइजेशन दोनों का फ्यूजन ऑफ गैमेट से हुआ तब क्या बनाएगा ये फीमेल. वाई इट इज़ रिटन हेयर फीमेल एंड देयर मेल, बिकॉज सिंगल ओवम हैज़ द कैपेबिलिटी टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. बट अगर ये जाएगा, ये फीमेल ओवम को फर्टिलाइज करेगा, जो sperm which is carrying 16 chromosomes, then it will result in the formation of female progeny. And if you want to understand the concept further, you can read it from this
para. The same thing is mentioned here. Color blindness we have read there in the previous lecture also. So it is sex linked recessive disorder. recessive disorder है जिसमें यहाँ पे दिया है कि इधर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेल्योर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. बेसिकली किस में डिफ्रेंशिएट करना दिक्कत होता है, इसमें रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करना इसमें दिक्कत हो रहा है. अब ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम में कुछ जीन्स प्रेजेंट है, उसमें म्यूटेशन के थ्रू होगा. और इसमें देखो फिर से, अब देखो बच्चों जितने भी डिजीज़ आप यहाँ पढ़ोगे विच मोस्टली अकर्स इन द मेल एज कम्पेयर टू फीमेल. सो 8% ऑफ मेल्स आर अफेक्टेड. क्यों? क्योंकि ये रेसिव है. तो मेल के केस में किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? एक्स वाई का. तो वाई तो कुछ कंट्रोल नहीं करेगा, एक्स अपने आप को एक्सप्रेस कर ले जाएगा क्योंकि ये रेसिव है. बट फीमेल्स के केस में वाई देयर इज अ लेस चांसेस, बिकॉज फीमेल वुड बी हैविंग दिस केस. हो सकता है एक डोमिनेंट और एक रेसिव, तो डोमिनेंट अपना फीचर शो करेगा और रेसिव से फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट्स वाई 8% मेल एंड 0.4% फीमेल्स आर अफेक्टेड. दिस इज़ बिकॉज जीन्स दैट लेड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस वो एक्स क्रोमोसोम में है. अब यही सेम फीचर है विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू दैट. द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज़ 50% चांसेस बीइंग कलर ब्लाइंडनेस. सपोज ये वीमेन है, उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, इसकी मैरिज हो गई. तो अब यहाँ पे एक रोशनी का क्या कॉम्बिनेशन आया? एक्स एक्स. ठीक है, इसका क्या आ गया? एक्स वाई. अब यहाँ पे क्या हो गया? एक्स एक्स सी. अब ये क्या थी? कैरियर थी. अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज़ 50%. सन के अंदर 50% चांसेस है. सन दिया है, पूरा चाइल्ड नहीं दिया. तो व्हाट वी हैव सीन? एक्स 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 वाई, इट इज़ कैरियर. एक्स 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 वाई नॉर्मल है, बट डॉटर क्या हो जाएगी यहाँ पे? इस केस में कैरियर हो गई और इस केस में क्या हो जाएगा? आई एम जस्ट राइटिंग इट हेयर. मेल विल बी अफेक्टेड. तो 50%, वन इज unaffected while other is affected. 50% chances of affection we can say here male child can get affected through this disease. So I think you have got this. Then thalassemia, it is again next another disorder which is mentioned here. It is a unique autosomal linked recessive blood disease. ऑटोजोम है, लिंक्ड है, रेसिव है, ब्लड डिजीज़ है. और फिर से आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सारी डिजीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी कैसी हैं? रेसिव हैं. कोई भी इसमें हमने अभी तक डोमिनेंट नहीं देखी है. अब बच्चों वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सो मैनी कॉन्सेप्ट्स. इट इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू रिकॉर्ड इट्स ऑडियो and then you have to send me its explanation and I will choose the best one whose explanation is best and that I will share along with my lecture. So this is your homework and it will also help me in tracing out who has listened to the lecture till last. Take thalassemia as homework. You have to explain me in your own words and any of your query I will just try to solve out. Along with it, I'm also going to share one link with you which will describe you how to solve pedigree analysis, and in that link it is explained in a very much nice way. So today we are done, my students. I am expecting the best performance from you all.